All right, in some news coming in, let's take you to a press conference on the cabinet from New Delhi. सर ब्रह्म प्रकाश फ्रॉम जी न्यूज़। मेरा सवाल सर, जो अर्बन चैलेंज फंड रखा है, तो इससे पहले स्मार्ट सिटी योजना भी थी सरकार की, तो जो ये फंड लगेगा क्या स्मार्ट सिटी उनमें भी लागू होगा ये फंड, या फिर ये अलग से उसी का सेकंड वर्जन है शहरों को विकसित करने के लिए? थैंक यू। नेक्स्ट 142। सर नमस्कार, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा सवाल भी अर्बन जो फंड आया है, अर्बन डेवलपमेंट फंड, इसमें टीयर 2 और टीयर 3 जो हम सिटी चुनेंगे उसके क्राइटेरिया क्या रखी गई हैं, क्या रखेंगे उसके लिए क्राइटेरिया? Sir, Thwesh from Economic Times. Continuing on the Urban Challenge Fund, sir, this was announced in last year's 25-26 budget. What are the kind of reforms that we are expecting from the states or from the urban bodies? Because there's a SASKI scheme also that provides incentives for states that are taking reforms. So how different will it be from that one? 270। Hello, sir. I'm Rituraj from Mint. Two questions. One, the underwater tunnel beneath the Brahmaputra, have the feasibility report been done for that? Because that's a highly seismic zone, maybe the 5th grade, and also that's a very flood-prone area. So what about that? And the other thing is regarding the Urban Challenge Fund again. How would we see synergy among Smart Cities mission, which obviously is largely in its fag end, and also the Amrut 2.0? 238 front। Yeah. अच्छा, okay, 49 then 238। सर मैं अजय यादव बोल रहा हूँ संदेश न्यूज़ से। जैसा कि आपने कहा कि साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को अंग्रेज़ों ने गुलामी की वीडियो में जकड़ने के लिए बनाया गया था, तो क्या प्रेसिडेंट हाउस भी या जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो भी वहाँ से हटेंगी या उनके लिए भी कोई नया आवास बनाया जाएगा? और दूसरा ये है कि आपने जो युगीन भारत संग्रहालय की बात की, तो वो कब तक बन जाएगा, उसकी पूरी डिटेल क्या है, उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? So good afternoon, this is Rishabh from Times Now. I have two questions. One, given that Seva Tirth, the PMO has shifted to Seva Tirth, when can we expect the ministries or central government offices which are in the rented accommodation in South Delhi, especially around JNU or other such areas, shifting to Kartavya Bhavan? And is there a timeline given to Defense Ministry and External Affairs Ministry to vacate the South Block? Because given the Defense Ministry, it is quite a task to get it shifted. And so on Metro project, when we are talking about the Aqua Line and Blue Line, extension from Botanical Garden to Sector 142, is there any recommendation coming in for a joint ticket system as well? Because as of now, the ticketing system is different and a lot of commuters have complained about that as well. Joint ticketing में क्या factor? 189 last, I think. Deepak. Sir, I am Deepak. I have three questions because there are three subjects. First, on the Urban Challenge Fund, I think there is a proposal that because it will be on PPP, so will the private players, their projects appraised by municipal bodies and states, will they also be able to tap these funds? But in a way, then they will become the administrator for different services. So that's a question for the UCF. And on the Maharashtra railway line that you talked about, 24-kilometer tunnel, will it be the biggest tunnel on the railway network? And third, about the underwater projects, sir, it will be, I think, longest tunnel. Sir, and I think this project will be a first of its kind, where the road, railway, and also Defense Ministry will be involved. Is there a proposal to share the funding pattern? And obviously, supplementary to that, because this has been going on since 2021. What was the cause of delay for this? First, we started to build a two-inch tunnel, both road and rail. Then suddenly it became only road, and finally it is becoming road and rail. All questions. Any other person wants to ask?
क्वेश्चंस जी सर। चलिए, सबसे पहले अर्बन फंड से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेता हूँ मैं। कहाँ लगेगा, सिनर्जी विद स्मार्ट सिटीज़, क्राइटेरिया क्या है, कंसल्टेशंस, रिफॉर्म्स वगैरह वगैरह बहुत सारे पॉइंट्स आए। बेसिकली जितने भी 10 लाख से ज़्यादा के शहर हैं, प्लस स्टेट कैपिटल्स, प्लस नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स के बहुत सारे शहर, काफ़ी वाइड रेंज ऑफ सिटीज़ को कवर किया जाएगा। अर्बन चैलेंज फंड में जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, उन प्रोजेक्ट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अर्बन लोकल बॉडी और स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स का भी होता है, आज भी होता है, इंडस्ट्री का भी होता है हमेशा, और वो मॉडल बना रहेगा। जो एक इनोवेशन आया है, वो इनोवेशन है फंडिंग में। फंडिंग 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रहेगी, 50% मार्केट से आएगी और 25% स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज़ की तरफ से रहेगी। प्रोजेक्ट्स जो लिए जाएंगे, उन प्रोजेक्ट्स का स्मार्ट सिटीज़ के साथ सिनर्जी रहेगी और लगातार गवर्नमेंट का एंडिएवर है कि अर्बन गवर्नेंस को सुधारें, नए रिफॉर्म्स उसमें लाएं, उसमें नागरिकों को सेंटर में रख के, नागरिकों के जीवन के आसपास, नागरिकों के डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स होंगे, उन रिफॉर्म्स को फोकस किया जाएगा। जो आपका क्वेश्चन था कि किस तरह के रिफॉर्म्स इसमें ध्यान दिए जाएंगे, उन रिफॉर्म्स को फोकस किया जाएगा। बहुत लॉन्ग कंसल्टेशन हुआ है बजट में, आपकी बात सही है, पिछले बजट में अनाउंस हुआ था ये, लेकिन इसमें राज्यों का रोल बहुत बड़ा है। स्टेट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। दैट्स व्हाई द एंटायर कंसल्टेशन प्रोसेस विद द स्टेट गवर्नमेंट्स वाज डन इन अ वेरी एक्सटेंसिव वे। इसीलिए इसमें 1 साल लगा कंप्लीट प्रोजेक्ट को पूरा फ्रेम करने में, बनाने में। टनल, जो अंडर वाटर टनल है, उसमें क्वेश्चन टेक्निकल है और दूसरा टाइम का है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। अंडर वाटर के अलावा ये जो हिमालयन जोन है, हिमालयन टेरेन में, जैसा आप सब जानते हैं, यंग माउंटेन्स है हिमालयन माउंटेन्स। यहाँ पर रॉक फॉर्मेशन कम है और रॉक और सैंड के बीच का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे टनल के डिज़ाइन को बहुत स्पेशल तरीके से किया जाता है। इसमें रेलवे और हाईवे दोनों की ही बहुत अच्छी एक्सपर्टीज डेवलप हो गई है। रेलवे का अगर एग्जांपल दूँ तो 2014 से पहले तक टोटल 125 किलोमीटर्स टनल्स थी। 2014 से अब तक 460 किलोमीटर्स टनल्स बनी है। मतलब 100 साल से ज़्यादा के पीरियड में 125 किलोमीटर की थी और ये 11 साल के पीरियड में 460 किलोमीटर नई टनल्स बनी है। ये इसलिए संभव हो पाया कि बहुत सारे टेक्निकल इनोवेशंस किए गए। हिमालयन टनलिंग मेथड एक नया डेवलप किया गया और इस हिमालयन टनलिंग मेथड में बहुत सारे जो कन्वेंशनल मेथड्स के कंपैरिजन में नए तरीके का है। तो जो आपका कंसर्न था कि क्या इसमें फिजिबिलिटी है और सीज्मिक और फ्लड से रिलेटेड मैटर्स को ध्यान दिया गया, हाँ इसका ध्यान दिया गया है और बहुत केयरफुली इसको स्टडी किया गया है। और इसीलिए इसमें टाइम भी ज़्यादा लगा है क्योंकि ट्रेन का वाइब्रेशन लेवल बहुत हाई होता है, हाईवे का वाइब्रेशन लेवल बहुत कम होता है। ट्रेन ऑन एन एवरेज 4000 टन्स की होती है, ट्रक सबसे बड़ी भी 40 टन की होती है। तो इसीलिए 40 से 4000 टन का जो डिफरेंस है उसके कारण वाइब्रेशंस, डिज़ाइन, इन सब का अलग से ध्यान रखा जाता है। तो जब ये ट्विन टनल वर्सेस सिंगल टनल के डिसीजंस हुए थे तब दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में बहुत काफ़ी डिटेल डिस्कशंस हुए और उसके बाद में डिटेल डिस्कशन के बाद में जॉइंट टनल सबसे ऑप्टिमल है वो डिसाइड हुआ। उससे मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम काम होता है, ये डिसाइड हुआ।
इसीलिए इसको जॉइंट टनल बनाया गया। 2 टनल अगर बनाते तो कॉस्ट इससे ज़्यादा आती। ये इसके अलावा अंडर वाटर वो मैं बता चुका हूँ कि प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे तो म्यूनिसिपल कंट्रोल म्यूनिसिपल बॉडी का ही है, स्टेट गवर्नमेंट का ही, वो क्लियर एकदम। मेट्रो की जॉइंट टिकटिंग पे, हाँ, मेट्रो में जॉइंट टिकटिंग का प्रोविजन है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के द्वारा, विच इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल मेट्रोज विच इज़ अंडर प्रोसेस। सेकेंड जो कसारा मनमाड वाली टनल है, दिस विल बी द सेकेंड लॉन्गेस्ट टनल है। लॉन्गेस्ट इज जालना जलगांव, वो तो बन रही है अभी। लॉन्गेस्ट विल बी जालना जलगांव, जिसमें 27 किलोमीटर्स की बनेगी, राइट, ये लॉन्गेस्ट रहेगी। ओवरऑल कर्तव्य भवन की तरफ शिफ्ट मिनिस्ट्रीज फास्ट रैपिडली हो रही है। एग्जैक्ट टाइम टेबल शिफ्टिंग का डिपार्टमेंट आपको दे देगा, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और पूरे सेंट्रल विस्ता प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आपके सामने आ ही चुकी है। उसी का हिस्सा है युगे युगिन म्यूजियम, और उसी का पार्ट बनेगा। बहुत जल्दी ये भी कंप्लीट होकर आपके सामने आएगा। थैंक यू साथियों। So there you heard Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav